Hello student, how are you? Welcome back. If you remember in previous lecture we have started the second lesson, that is chemical bonding. Now in chemical bonding you have learned about the ionic bond, correct? Now in today's lecture we will study about the covalent bonding. All of you remember covalent bond? Okay, so let us begin what is meant by covalent bond. So in ionic bond we have seen that ionic bond is formed between metal and non-metal, and if you remember the definition of ionic bond is formed by the transfer of one or more electron from one atom to another atom, correct? That is the ionic bond. Now in covalent bond, what is the main difference between ionic bond and covalent bond? Now in covalent bond, electrons are not transferred from one atom to another, but between two atoms or more atoms, the electrons are shared. Okay. Now what is meant by shared? Sharing of electron means each atom, whatever, suppose any two atoms are involved in the bond, always two atoms are involved. When two atoms are involved in the bond, each atom, that is this atom and this atom, both share its one electron. Okay, both share its electron. That means what? This atom also share one electron with this atom, and this atom also share one electron with this atom. That means there is a mutual sharing of electron. Got it? There is a mutual sharing of electron between the two atoms, and that is the definition of covalent bond. So how will you define? Covalent bond is the bond formed by mutual sharing of electron between two atoms. Okay, that is the covalent bond. Now let us see the example. The example of covalent bond. The very first example we will consider hydrogen molecule. Okay, H2 molecule. Very simple example. Now in H2 molecule, there are two hydrogen atoms. You know, atomic number of hydrogen is 1, its configuration is also 1. So I am writing here one atom of hydrogen and showing one dot. So this dot means what? One electron. And second atom, because there are two hydrogen atoms, the second hydrogen atom with that is also one electron. Now what happened? These two atoms share their electron with each other, and this sharing is shown by a line. So this line means nothing but the covalent bond. Remember, in ionic bond we have not used any such type of line. We have shown only positive negative charges in ionic bond, but here we use the line to represent the covalent bond. So whenever you see any line between two atoms, that means it is a covalent bond. Okay. Now if I draw the diagram of both hydrogen atom, it is like this. So this is the first hydrogen and this is the second hydrogen. Now in second hydrogen what happens? There is a overlap होता है उनके shells. Okay, so this is the electron of this hydrogen atom, and see, you can see here there is a sharing of electron. So covalent bond basically कैसे बनता है? Covalent bond is formed by overlapping of the shells. Okay, उनकी जो valence shell होगी, remember valence shell should be there. Valence shell में क्या होता है? Overlapping होता है. Okay, actually यहाँ पर एक concept है orbitals का, जो तुम 11th में पढ़ोगे. Orbitals, ये जो shells दिख रही है, इसमें क्या होती है? Again 4 types of orbitals होती है. S orbital, P orbital, D orbital and F orbital. That is not for your syllabus now. For you, just remember there is an overlap of shells, and actually there is an overlap of orbitals. Okay, but orbitals is not shown here, only shells are shown. Okay, so here the bond is formed between hydrogen. Now again, at the beginning of this chapter I told why the bond is formed.
व्हाई द बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबल, जब कोई भी दो एटम बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक दूसरे के बीच, तो उनके बीच में क्या हो, तो दोनों एटम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल कैसे होते हैं, बाय कंप्लीटिंग देयर डुप्लेट और ऑक्टेट। ओके, आयोनिक बॉन्ड में हमने ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होती है ये पढ़ा, ऑक्टेट एटम की कैसे कंप्लीट होती है ये हमने देखा। अब इसमें इस एग्जांपल में देखो डुप्लेट कंप्लीट हो रही है कैसे देखो, ये जो हाइड्रोजन है, एक फर्स्ट एटम जो है हाइड्रोजन का, ये देख लो यहाँ पर, इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब तुम्हें डिस्टेंस बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई डिस्टेंस इतना होता नहीं है। ओके, तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी ड्यूप्लेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और सेम उसका भी, इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन एटम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है, तो इसकी भी क्या हो जाती है, डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है। तो दोनों की डुप्लेट कंप्लीट हो जाती है, इसलिए दोनों भी क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। सो व्हेन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, द डुप्लेट ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम इज कंप्लीटेड एंड दे बिकम stable. Okay, so this is the main reason that why bond is formed. Now let us take one more example. All of you know the name of this compound, that is methane, and methane is a gas, correct? It is the first member of hydrocarbon. Okay, in organic chemistry chapter we will study that this is the first member of homologous series, that is hydrocarbon. homologous series किसकी होती है, हाइड्रोकार्बन्स की होती है। now look at, तो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन कैसे आता है, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ओके, डॉट स्ट्रक्चर का मैंने तुम्हें लोगों को आयोनिक बॉन्ड में भी बताया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर। अब ये डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आयोनिक कंपाउंड का भी पूछ सकते हैं, कोवेलेंट का भी पूछ सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके लिए भी क्वेश्चन आ सकता है डॉट स्ट्रक्चर का। तो डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का अगर पूछा, तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आया कि ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर में जो कंपाउंड तुम्हें दिए जाएंगे, पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना है वो आयोनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट है। अब आयोनिक और कोवेलेंट कैसे पहचानते हैं ये मैंने बताया। आयोनिक कैसे पहचानते हैं, ionic compound is mostly formed between metal and non-metal, and covalent compound is formed between non-metal and non-metal. Okay, so very simple. तो पहले क्या करना है तुम्हें, जो सेंट्रल एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है इसमें, कार्बन, तो उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख के कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। जो दूसरा एलिमेंट है उसके बाद उसका भी तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फिर क्या करना है, सेंट्रल एटम जो है वो तुम्हें बीच में लिखना है, या फिर तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर, 4 हाइड्रोजन, सो आई एम राइटिंग लाइक दिस। ओके, देन मेक an arrow, so these 4 hydrogen and 1 carbon will combine together. Okay, so basically it is not a chemical reaction, remember this is not a chemical reaction. So carbon, how many valence electron, 4 valence electron. Now 4 hydrogens are there, so you have to write the hydrogens like this. So you can use the cross for showing electron of hydrogen. Okay, now what will happen, see, carbon has how many valence electron, 4. It will not accept 4 electron, or it will not donate 4 electron. So remember that table in the ionic bond, I told that table, if there are 4 valence electron in any element in the valence shell, that element share the electron. So carbon will share the electron, not donate or not accept. So this carbon share its all the 4 electron with 4 hydrogen atoms. Okay, and like this 4 covalent bonds will be formed here. Now remember one very important point, in each covalent bond there are always 2 electrons. Okay, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का और एक
इस एलिमेंट का, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। कैसे? पहले उसके खुद के 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए? हाइड्रोजन के। सो दैट मीन्स ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीटेड एंड डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंप्लीटेड हियर। कैसे? हाइड्रोजन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1। तो याद रखो कि यहां पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसीलिए उनकी ऑक्टेट और डुप्लेट क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। शेयरिंग हो रही है मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं इन दोनों एलिमेंट के बीच में। देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव टुवर्ड्स द कार्बन और नॉट मूव टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। ओके, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, बट in covalent bond there is a equal distribution of electron between 2 elements. Understood? So this is the dot structure for methane. I hope now you can draw the dot structure for any compound, any covalent compound. In this manner you have to draw the dot structure, and this is for 2 marks. Very simple question for 2 marks. Okay, so these marks should not be, ये marks तुम्हारे जाने नहीं चाहिए हाथ से। Okay, very simple question. Now अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हम क्या देखेंगे अभी? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो नाउ द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देयर आर मेनली 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। The first type is what? Polar covalent bond, and second type is what? Non-polar covalent bond. So first of all, as usual, हम लोग क्या देखते हैं? Meaning of the word. What is mean by the word polar? तो ये वर्ड सबने सुना है फिजिक्स में, पोल। पोल, इस वर्ड का मीनिंग सबको पता है। पोल क्या होता है? तो पोल जनरली मैग्नेट के लिए यूज किया होगा तुम लोगों ने। मैग्नेट है सपोज, तो उसके 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ओके, पोल इस वर्ड का मीनिंग एक्चुअल क्या होता है फिर? एंड। ओके, दिस इज द साउथ एंड एंड दिस इज द नॉर्थ एंड। समझ में? पोल का मीनिंग क्या होता है? नॉर्थ एंड होता है, नॉर्थ एंड साउथ एंड। वैसे ही अब हम केमिस्ट्री में क्या देखेंगे कि पोलर मतलब क्या होता है? पोलर, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ फिर? अब पोलर मतलब जिसको 2 एंड है। ओके, अब ये जैसे फिजिक्स में नॉर्थ एंड साउथ एंड देखा, वैसे केमिस्ट्री में अब क्या देखना है? केमिस्ट्री में 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक निगेटिव एंड होता है। वो कैसे? कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम लोगों ने NaCl स्टडी किया था हमने, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये निगेटिव चार्ज होता है क्लोरीन पर। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? पॉजिटिव एंड, एंड दिस इज अ नेगेटिव एंड, बट दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड। दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड। नाउ इन कोवेलेंट बॉन्ड ये पोल अब कैसे बनेंगे? देखो, तो इस पोलर को समझने के लिए हमें एक और टर्म याद रखनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये हमने पढ़ी है चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और आयोनिक बॉन्ड में भी हमने वापस देखी थी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो, मेनली 4 एटम्स इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर नाइट्रोजन। मेनली तुम लोगों को ये 4 एलिमेंट याद रखने हैं जो कि क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव है मतलब इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाकी एलिमेंट से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट लिखे, बट एक्चुअली सिर्फ 4 एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्या? नहीं, सब एलिमेंट की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। ओके, बट ज्यादातर तुम्हारे 10th के सिलेबस में ये एलिमेंट तुम्हें अच्छे से याद रखने हैं, बाकी और डिटेल में तुम 11th में पढ़ोगे, 11th 12th में। तो इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब क्या होगा देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, H2O। वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब कोवेलेंट बॉन्ड तुम लोगों ने पढ़ा है, वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। वाटर में क्या होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके,
और हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में ये कैसा सा बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, करेक्ट है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा है, ओके। हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा है, तो यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शेयरिंग, यहाँ पर भी शेयरिंग होगी, तो ये दो क्या बन गए, कोवेलेंट बॉन्ड, और दो पेयर वैसे ही बच गए, इनको जो इनको क्या कहते हैं हम लोग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर नहीं हो चुके, दैट इज नॉट शेयर्ड, ओके, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अनशेयर्ड और सिंपली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है, इन 4 एलिमेंट में मैंने लिखा है, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक्चुअली एक स्केल पर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिंग स्केल। तो ये तुम्हारे 10th के बुक में भी दिया है, लेकिन वो कैसी होती है ये डिटेल में नहीं दिया है। पॉलिंग स्केल होती है, और पॉलिंग स्केल के ऊपर हम लोग हर एक एलिमेंट की एक वैल्यू होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उस वैल्यू से पता चलता है कि कौन से एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कौन से इसकी कम है। बट इन जनरल तुम्हें याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, लेफ्ट वालों की कम होती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके बीच में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन, ओके। तो याद रखना है, जब कभी भी ये 4 एलिमेंट आएंगे, जब कभी भी ये 4 एलिमेंट आएंगे और ये जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, मतलब जैसे ऑक्सीजन ने यहाँ पर हाइड्रोजन, वैसे ही फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, क्लोरीन ओके हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हो सकता है। मेनली 4-5 ही एग्जाम्पल है तुम्हारे इस चैप्टर में, वो ही अच्छे से याद रखे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये 4 एलिमेंट जब कभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, तो तुम्हें समझना है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, अब देखो मैंने बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, हमने देखा कि 2 एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास भी नहीं होते और हाइड्रोजन के पास भी नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ मूव होंगे, ऑक्सीजन की तरफ मूव होंगे। इसको मैं ऐसे एरो से दिखाता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होगा क्योंकि बॉन्ड सेम है दोनों जगह, समझ में आ रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो थे दोनों के बीच में जो शेयर हो चुके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किसकी तरफ मूव होंगे, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों, क्योंकि इसके पास अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, करेक्ट है। तो अब ये चार्ज देने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डेल्टा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेल्टा। डेल्टा इस सिंबल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डेल्टा मीन्स पार्शियल। डेल्टा मीन्स पार्शियल मतलब पूरा नहीं है, मतलब पूरा निगेटिव चार्ज नहीं है, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जैसे हमने आयोनिक में देखा NaCl में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कंप्लीट निगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पे कोई पार्शियल वगैरह टर्म हमने यूज नहीं की, लेकिन यहाँ पे हम पार्शियल टर्म यूज करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से नहीं, ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं बट पूरी तरीके से ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाते। मतलब हाइड्रोजन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं देता, डोनेट नहीं करता ऑक्सीजन को, इसीलिए ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव है। ओके, समझ में आया, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, देखो यहाँ पर अब 2 एंड बन चुके हैं। जैसे मैं पोलर की बात कर रहा था, पोलर मतलब क्या, एंड। तो यहाँ पे 2 एंड हो गए। देखो ये क्या हुआ तुम्हारा पॉजिटिव एंड, एंड ये क्या हुआ निगेटिव एंड। तो किसी भी कंपाउंड में अगर ऐसे चार्ज बन गए, डेल्टा निगेटिव और पॉजिटिव, ऐसे 2 एंड बन गए, तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी सिंपल, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट। समझ में आया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो कंप्लीट पॉजिटिव निगेटिव है, तो फिर ये पोलर नहीं है क्या? ऑफ कोर्स इट इज अ पोलर।
एंड दीज आर द 100% पोलर। जितने भी आयोनिक कंपाउंड है, जहां पर भी आयोनिक बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, 100% आयोनिक बॉन्ड रहेगा। ओके, बट उसमें भी अगेन है कुछ एक्सेप्शन, 100% नहीं, कुछ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बोलते हैं उसको, कुछ परसेंट बॉन्ड जो है आयोनिक रहता है, कुछ परसेंट कोवेलेंट रहता है। सो यहाँ पर ये ऑब्वियसली क्या है, सारे के सारे आयोनिक, सारे के सारे क्या है, पोलर है। और ये भी क्या है, पोलर है, बट ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टूड। तो ऐसे एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, मैंने क्या बताया, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पोलर कोवेलेंट के लिए, ये 4 एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने चाहिए। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, इसमें भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादातर फ्लोरीन की तरफ, तो इसके ऊपर आएगा निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देन HCl, अब देखो क्लोरीन आया यहाँ पर, क्लोरीन के तरफ भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, इसके ऊपर आएगा निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और अमोनिया का अगर एग्जांपल लो तुम, नाइट्रोजन का, तो इसमें आएगा अमोनिया का एग्जांपल, दिस इज द अमोनिया। नाउ नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, so electron will move more towards the nitrogen, so therefore partial negative, partial positive, partial positive and partial positive. So these are the 4 examples in which polar covalent bond is present. Okay, now next is non-polar covalent bond. अब non-polar covalent bond के examples कौन से, देखो पोलर समझ में आया, पोलर मतलब क्या है, जिसमें पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव बनता है, और नॉन पोलर क्या होगा, उसके अपोजिट, मतलब जहां पर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज नहीं बनते, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर। सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मिथेन। ओके, मिथेन में देखो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा, किसके साथ बॉन्ड है, कार्बन के साथ। कार्बन है कि इसमें नहीं है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पॉलिंग स्केल पर देखोगे तो बहुत कम है, मतलब इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, कम है। ओके, इसीलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है उतना करेक्ट, एक्चुअली इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28 डिग्री होता है, बट अभी के लिए ठीक है, इतना याद रखो। तो यहाँ पर कोई भी पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज अ, और दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, so for your 10th grade syllabus, just remember these 4 elements. This is very important. Whenever these 4 elements forms the bond with hydrogen, then that bond becomes polar, and if these 4 elements are not involved, then this bond will be non-polar. Okay, but remember this I am telling for your up to 10th grade level. Okay, this topic is more in detail in the next grade. Okay, now what are the other examples of non-polar? All the diatomic molecule like Cl2, H2, O2, N2. Okay, तो अब आप पूछोगे कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं दोनों जगह अब क्या है, सेम है ना, तो कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल भी होते ट्रिपल भी होते। ओके, ये मैं बताता हूँ आगे। तो देखो दोनों जगह ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन भी इक्वली अट्रैक्ट करेगा, तो किसी की तरफ भी नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच रहेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, तो यहाँ पे कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं बनेगा। दो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ओके, ऑल द डायटोमिक मॉलिक्यूल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है।
तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी का लेता हूँ ऑक्सीजन का। अब देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 और ये एक ऑक्सीजन, सॉरी, ओके, दोनों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखो ऑक्सीजन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालते हैं हम लोग, 2 6, तो इसकी वैलेंसी क्या आती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी निकल के आती है 2। हमने पढ़ा है वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। वैलेंसी 2 हो गई, इसका मतलब ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन कैन फॉर्म। तो देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में म्यूचुअल शेयरिंग होता है, यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब क्या हुआ, अब देखो म्यूचुअल शेयरिंग भी क्यों होती है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, तो ये इस ऑक्सीजन से लेगा, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट के लिए, तो ये क्या है, किससे लेगा, ये इस ऑक्सीजन से लेगा, तो इसकी भी क्या हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। बोथ ऑक्सीजन कंप्लीट्स देयर ऑक्टेट। ओके, सो दिस वे 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म हियर। ओके, जैसे हमने मीथेन में देखा, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बट यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सिमिलरली कुछ मॉलिक्यूल्स में 3 बॉन्ड भी बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। सो इन N2 नाइट्रोजन configuration is 2 5, how many valence electrons are there, 5, so this is the first nitrogen and these are the 5 valence electron, then this is the second nitrogen and this is its a 5 valence electron. Now what is the valency of nitrogen, nitrogen valency is 3 because it accepts 3 electron. And when it accepts 3 electron, that means valency is 3 means what, nitrogen can form 3 bond. So here look at here, this nitrogen has 5 valence electron, to complete octet 3 electrons are required, so it it accepts 3 electron from this nitrogen atom. तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है और इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। यहां पर क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का हमने मीथेन देखा था। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अंडरस्टूड? ओके, सो वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देन we have seen types of covalent bond, and we have seen the double covalent bond and triple covalent bond. Now we will study what are the properties of covalent compound. Properties of covalent compound, very simple, जैसे हमने, if you remember, in ionic bond we have studied 3 properties. First क्या थी, melting point, boiling point. Second क्या थी, solubility इन वाटर, आयनिक कंपाउंड वाटर में सोल्यूबल होते हैं कितने होते हैं, और थर्ड हमने देखी थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सेम प्रॉपर्टीज हम कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी देखेंगे, और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। तो फर्स्ट आती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उससे पहले भी एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज स्टेट, मतलब ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये कौन से स्टेट में, जैसे आयनिक कंपाउंड कौन से स्टेट में होते हैं, ज्यादातर मैंने बताया था 99% आर in the solid state, some are in the liquid state also, but in case of covalent, the covalent compounds are present in all the 3 state, तीनों भी स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, जैसे गैस का एग्जांपल हमने देखा, स्टडी किया, मीथेन, ओके, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड है और ये कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ओके, लिक्विड का हमने एग्जांपल देखा, वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। ओके, देन सॉलिड के भी कुछ एग्जांपल्स है, वो हम देखेंगे। सॉलिड के कम एग्जांपल्स है तुम लोगों को, जैसे
बेंजोइक एसिड होता है, ये तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। बेंजोइक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने जो आयोनिक बॉन्ड में जो पढ़ा था कि आयोनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। वो क्यों हाई होता है? क्योंकि मैंने वो डायग्राम या यहाँ पे ड्रॉ की थी, याद है सबको, पॉजिटिव निगेटिव NaCl की डायग्राम। और मैंने बताया था कि जैसे Na+ और Cl- के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही दो NaCl के मॉलिक्यूल में भी क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट आयन का अट्रैक्शन होता है। तो और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अब कोवेलेंट में देखा हमने कि इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन का स्ट्रक्चर हमने देखा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मीथेन दिखाया, मैं दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि कभी भी एक मॉलिक्यूल नहीं रहता प्रेजेंट। हमेशा अगर हम लोग थोड़ा सा भी मीथेन गैस लें तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? अनकाउंटेबल। ओके, तो मैं यहाँ समझने के लिए दो मॉलिक्यूल निकालता हूँ। अब देखो इसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव। सो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर मैं इसका ऐसा सर्कल बनाऊं, तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या अट्रैक्शन रहेगा? कोई अट्रैक्शन बनेगा क्या? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ही नहीं है तो अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, करेक्ट है। तो अट्रैक्शन नहीं है तो इनको सेपरेट करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी क्या? नहीं लगेगी, क्योंकि अगर कोई इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है तो इनको सेपरेट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगी। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। ओके, बट रिमेंबर यहां पर हमें दिख नहीं रहा कि कोई अट्रैक्शन नहीं, बट इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और दो टाइप के अट्रैक्शन होते हैं। जैसे हमने कोवेलेंट कंपाउंड के दो टाइप देखे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। तो नॉन पोलर की अगर हम बात करें, जैसे मीथेन है, तो इसमें जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड वैन वाल फोर्स। इट इज कॉल्ड एज अ वैन वाल फोर्स, इट इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट वैन वाल। ओके, अब इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कैसे होता है? देखो CH4 ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल दिखाए मीथेन के रैंडमली। अब इनके बीच में ऐसे फोर्सेस होते हैं, और ये फोर्सेस जो है वैन डर वाल फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है ये क्या होते हैं? बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। मतलब क्या? बहुत ही जल्दी ब्रेक होते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ दीज वैन डर वाल फोर्सेस आर फॉर्म, ये कैसे बनते? तो ये बनते कैसे हैं? तो इसके लिए एक क्या बताया उन्होंने कि जो मीथेन है इसका मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पर, बट एक्चुअली हाइड्रोजन हम ऐसे सिर्फ सिंबल निकालते हैं H, बट एक्चुअली ये कैसा है? एक एटम है, करेक्ट है ना? हाइड्रोजन ये क्या है? एक एटम है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही दूसरा मीथेन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, मतलब क्या है? एक एटम है हाइड्रोजन का। तो वो ये जो वैन डर वाल फोर्सेस है ये कैसे बनते हैं? कि जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास होते हैं तो इनके जो एटम्स है, इनके एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे होगा? देखो ये जो इस हाइड्रोजन का, इनको मैं नंबर देता हूँ, दिस इज फर्स्ट मीथेन मॉलिक्यूल, सेकंड मीथेन मॉलिक्यूल। तो ये फर्स्ट मीथेन मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उसका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, वो अट्रैक्ट होगा इसके न्यूक्लियस की तरफ। मतलब सेकंड मीथेन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, और सेकंड मीथेन मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब अपोजिट चार्जेस में यहाँ पर क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। सिमिलरली जैसे अट्रैक्शन होता है वैसे रिपल्शन भी होगा यहाँ पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहे हैं तो यहाँ पर रिपल्शन भी होता है। ओके, तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है इनकी वजह से कौन से फोर्सेस फॉर्म होते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस फॉर्म होते हैं। और रिमेंबर दीज फोर्सेस आर वेरी वीक। ओके, तो दैट्स व्हाई these because of these weak forces, the melting point and boiling point of covalent compounds are very less. It is very less as compared to that of ionic. So first is distinguishing point, remember, between covalent compound and ionic compound.
So this is the van der Waals force present in non-polar covalent bond. But what about the polar covalent bond? Polar covalent bond like HCl, NH3, HF, H2O. अब देखो HCl मैं यहाँ पे निकालता हूँ. This is the first molecule of HCl. This is the second molecule of HCl, and likewise so many molecules are there. Suppose now we have studied that chlorine electronegativity is more than that of hydrogen, so therefore it will acquire partial negative charge and it will acquire partial positive. This will acquire partial positive, partial negative. Correct है? Now देखो अपोजिट चार्जेस आ गए एक दूसरे के पास, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स फॉर्म होगा ऑब्वियसली. और इस फोर्स का जो नाम है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. Remember, this is very important. So many questions are asked in competitive exam on hydrogen bond. Hydrogen bond. अब hydrogen bond क्यों कहा है इसको? Obviously because hydrogen is involved here. Okay? तो ऐसे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर रहते हैं और जो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन बनता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज stronger than that of van der Waals forces, little bit stronger than that of van der Waals forces. इसीलिए जिन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है मोस्टली वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और जिनके बीच में van der Waals फोर्स होता है उनके वो मोस्टली गैसियस स्टेट में होता है. अगेन देयर आर एक्सेप्शन. ओके, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन. सो जो मैंने बताया वो हर एक के लिए ट्रू नहीं है. कुछ मॉलिक्यूल से जैसे अमोनिया है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट है, बट वो कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में. ओके, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जिनमें van der Waals फोर्सेस है बट फिर भी वो लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, बट जनरल एक मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड रहा तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो लिक्विड स्टेट में रहेगा और जिसमें van der Waals फोर्सेस रहेंगे वो गैसियस स्टेट में रहेंगे. ओके, अंडरस्टूड दिस टू फोर्सेस, van der Waals forces and hydrogen bond. In your 10th grade exam also the questions are asked on these. Okay. So first property हमने देखी melting point, boiling point. In case of covalent compound, melting and boiling point are weaker because their intermolecular forces are very weak as compared to that of ionic. Second, solubility. अब देखो यहाँ पर मैंने आयोनिक बॉन्ड में जब पढ़ाया था सोल्यूबिलिटी आयोनिक कंपाउंड में, तो मैंने आप वहां पे बताया था कि सॉल्वेंट में आयोनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं. अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है इसको हम पढ़ेंगे जरा थोड़ा सा डिटेल में. सॉल्वेंट व्हाट इज मीन बाय सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मींस इट इज द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड. नाउ व्हाट इज सोल्यूट? सोल्यूट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व करते हैं किसी भी सब्सटेंस में. अब देखो ये 8th-9th ग्रेड में भी तुम लोगों ने पढ़ा है. सोल्यूट किसे कहते हैं? जो कम क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है. ओके, इट इज नॉट ऑलवेज दैट सोल्यूट शुड बी सॉलिड और सॉल्वेंट शुड बी लिक्विड. ओके, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मे बी प्रेजेंट इन एनी स्टेट, बट जो लेस क्वांटिटी में होता है वो सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट यहाँ पर हम लोग दो तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. सॉल्वेंट एक होता है पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट. अब समझ में आया तुम लोगों को? पोलर किसे बोलते हैं, नॉन पोलर किसे बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट मतलब जैसे जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव रहेंगे, जैसे वाटर है. वाटर में आते हैं कि नहीं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव. तो वाटर कौन से टाइप का सॉल्वेंट हुआ? पोलर सॉल्वेंट. ओके, पोलर सॉल्वेंट. और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे ईथर है या फिर CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम लाइक अ मीथेन. CCl4 इज सेम लाइक अ मीथेन मॉलिक्यूल. ओके, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं था, बट आई होप यू कैन ऑल very well draw the CCl4. Carbon, how many valence electron? 4 valence electron. And you know, in case of chlorine there are 7 valence electron. Okay, so in this way the covalent bond is formed. 4 covalent bonds is formed between carbon and chlorine. Okay, now this covalent bond is a non-polar covalent bond. Why it is non-polar? Because bond is between carbon and chlorine. Though chlorine is more electronegativity, but the difference, carbon is also little bit electronegative.
so the difference is not very much, so therefore it is a non-polar covalent bond. So CCl4, ether, these are the examples of non-polar solvent. Water is the polar solvent. I hope this is clear now. Now हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड जो है जैसे NaCl है, MgO है, ओके, देन MgCl2 है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके। तो ये कंपाउंड जो है ये क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर में क्यों सोल्यूबल? क्योंकि इनके ऊपर भी पॉजिटिव है, इनके ऊपर भी निगेटिव है। और वाटर में देखो, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ करके बताई थी, जैसे ही हम NaCl वाटर में ऐड करते हैं तो मैंने बताया था कल Na+ के सराउंडिंग में कौन आ जाते हैं, वाटर के निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। करेक्ट, याद है सबको? वेरी सिंपल, करेक्ट। In this way, Na+ is surrounded by the negatively charged oxygen of the water molecule. Okay, और Cl के सराउंडिंग में कौन आ जाता है? Cl के सराउंडिंग में हाइड्रोजन आ जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल के। ऐसे ही डायग्राम बनती है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, Cl और Cl- की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? हाइड्रोजन अट्रैक्ट होंगे। So why NaCl is soluble in the water? Because of formation of these type of attractions, these type of forces. Now you know ionic compounds are always polar. मैंने बताया था ionic compounds are always polar, they are 100% polar, and water is also polar. So what the rule comes out? Polar compound dissolves in polar solvent. This rule is called as a like dissolve like. मतलब polar dissolves in polar. This rule is called like dissolve like. Remember this. Like dissolve like. Polar dissolves in polar. Similarly, non-polar क्या होंगे? Non-polar में dissolve होंगे. Non-polar compound क्या होंगे? Non-polar compound non-polar solvent में dissolve होंगे. Are you getting it? Okay. अब ये NaCl polar है तो polar solvent में dissolve होंगे. अब कोई भी compound अगर तुम्हारे सामने आया, suppose मीथेन. अब मीथेन ये क्या है? Methane is non-polar compound, correct? So will that methane dissolve in water? No, because methane is non-polar and water is polar, so they will not dissolve with each other. समझ में आया? ऐसे कोई भी कंपाउंड आए तो पहले देखना है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट भी देखना है पोलर है कि नॉन पोलर है, फिर दोनों अगर सेम रहे पोलर पोलर तो वो डिसॉल्व होंगे एक दूसरे में, नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अगेन सोल्युबिलिटी इज वेरी बिग टॉपिक। ये जो मैंने बताया लाइक डिसॉल्व लाइक, अगेन देयर इज एक्सेप्शन। ओके, सो आप बोलोगे कि सर ऐसे कितने एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन पढ़ के थक जाओगे, बट एक्सेप्शन कभी खत्म नहीं होगी। ओके, इसके भी एक्सेप्शन है, वो तुम हायर ग्रेड्स में पढ़ोगे। ओके, सो कोवैलेंट कंपाउंड जो है इनकी वाटर में सोल्युबिलिटी क्या होती है? They are not soluble in the water. Very few covalent compounds are there that are soluble in the water. Okay, and third property is conductivity, that is electrical conductivity. Okay, now electrical conductivity में हमने आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में देखा था कि जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए, थ्रू द कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स जरूरी होते हैं। वैसे ही आयनिक में हमने देखा कि करंट पास होने के लिए थ्रू द सॉल्यूशन स्टेट करंट पास होने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयंस की जरूरत होती है। कौन से आयन? पॉजिटिव निगेटिव, कैटायन एनायन की जरूरत होती है। अब देखो कोवैलेंट कंपाउंड में हमने देखा, जैसे मीथेन देखा हमने, वाटर देखा हमने, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो ये नॉन पोलर है तो इसके ऊपर कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ही नहीं है, या फिर ये आयन फॉर्म करते हैं क्या? वाटर मीथेन ये आयन फॉर्म करते हैं क्या? नहीं, ये आयन कभी नहीं फॉर्म करते, तो ये करंट पास करेंगे क्या? नहीं करेंगे। दीज कंपाउंड विल नॉट कंडक्ट द करंट आइदर इन द सॉल्यूशन स्टेट, आइदर इन द सॉलिड स्टेट और आइदर इन द गैसियस स्टेट। ओके सर, तो फिर आप ये बोलोगे कि सर ये तो वाटर है और वाटर से तो करंट पास होता है, हमने ऑब्जर्व किया है। तो देखो कौन से वाटर से करंट पास होता है? अगर डिस्टिल्ड वाटर अगर लोगे ना, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, तो उसमें से करंट पास नहीं होता। वाटर से करंट पास होता है। क्यों पास होता है? क्योंकि नेचुरली वाटर में कुछ सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, कुछ मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए वो करंट पास करता है। थोड़े से आयंस प्रेजेंट होते हैं,
इसीलिए वो वाटर करंट पास करता है। लेकिन डिस्टिल वाटर अगर लोगे तो उसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता। ओके, सो कंडक्टिविटी के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग? कोवेलेंट कंपाउंड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so that's all about the covalent bond and covalent compound. Now the last part of this chapter is remaining, that is coordinate bond. Okay, so now the last part of this chapter and the next type of bond that we want to study is the coordinate bond. Okay, now as I told, coordinate bond is also a type of covalent bond. Okay, now what is meant by coordinate bond? Let us study. Coordinate bond. Now as usual we will study first what is the meaning of this word coordinate. Okay, now coordinate is the word used for this type of bond because there are one type of compound, you know, there are various types of compound, like we have studied ionic compound, covalent compound, and one third type is there that you will study in 12th grade, coordination compound. They are called as a coordination compound. Usually they are a complex compound. Okay, and in that compound these type of bonds are formed mostly. Okay, these types of bond, that is coordinate bond, is mostly formed in the coordination compound. Therefore the name to this bond is given coordinate bond. Okay, now for your 10th grade syllabus this topic is very simple. Only 2 examples you have to study. Okay, for your 10th grade syllabus you have to study only 2 examples, and these 2 examples are hydronium ion and ammonium ion. But first of all, what is the definition of coordinate bond? Let us do one thing. I will tell you the examples of this first coordinate bond, then you will study the definition, because you will understood then better than telling now. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि मैंने बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है कि ये एक टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. सो कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कैसे होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स. नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, देखो जैसे हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन का फॉर्मूला सबको पता है. अमोनियम आयन इज शोन लाइक दिस NH4 प्लस. अब ये बनता कैसे, देखो इसका हम लोग पहले देखेंगे फॉर्मेशन, अमोनियम आयन बनता कैसे है. तो ये अमोनियम आयन बनता है अमोनिया और एसिड से. ओके, कौन सा एसिड, कोई भी ले सकते हैं, HCl H2SO4. ओके, सो अमोनिया का स्ट्रक्चर सबको पता है. अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने देखा. Ammonia, nitrogen has 5 valence electron, hydrogen has 1 electron. So how many covalent bonds are formed here? There are 3 covalent bonds. 3 covalent bonds are formed here. And when you add the HCl, you know, when acid is added, which ion is released? H plus ion. So I am writing here only the H plus ion, not the complete HCl. So what happens here? Now this is called as what? I told, what is this? This is the lone pair of electron. ये क्या है, lone pair of electron or unshared pair of electron. This is not shared like here the electrons are shared with hydrogen. These electrons are not shared. Therefore, it is a unshared pair, or it is called as a lone pair of electron. Now, what happens when ammonia and HCl mixed together, or when H plus ion comes near this ammonia molecule, this nitrogen shares its electron with the hydrogen. Correct? Now why? Because you know H plus, what is the charge on hydrogen? It is a plus. Okay, hydrogen is positive charge. That means there is no electron in the hydrogen. हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की डुप्लेट के लिए. तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करता है. तो ऑलरेडी देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे 3, बट यू नो नाइट्रोजन कैन एक्सपांड इट्स वैलेंसी टू 4. तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक नाइट्रोजन. तो कैसे बनेगा देखो, तो नाइट्रोजन एज इट इज मैं पहले लिखूंगा, अमोनिया पहले एज इट इज लिखूंगा. ओके, और ये जो लोन पेयर है ये किसके साथ शेयर हुई? हाइड्रोजन के साथ. अब देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए ना, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा?
तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन नाइट्रोजन ने क्या किया है, उसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये उसके साथ शेयर किए हैं। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये यूजुअली किससे दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं। ये एरो का मीनिंग क्या होता है, एरो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन टू hydrogen, therefore this coordinate bond is always shown by the arrow. Okay, and you know nitrogen has donated its lone pair of electron, therefore positive charge will appear here. And you know in this solution Cl minus is also there, so outside the bracket Cl minus will also there. Okay, so this is called as a ammonium ion, and the complete molecule compound is a ammonium chloride. Ammonium chloride is formed. Actually here it is what is formed, ammonium chloride is formed when ammonia mixed with HCl. Okay, so this is called as a formation of ammonium ion. अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में कि हाउ अमोनियम आयन इज फॉर्म, तो ये इक्वेशन लिखना है। और डॉट स्ट्रक्चर भी पूछा अगर सपोज अमोनियम आयन का, तो भी ये लिखना है। इसका भी डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनियम आयन। तो ऐसा कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर आएगा। ओके, सो हमने अमोनियम आयन का डॉट स्ट्रक्चर देखा। अमोनियम आयन में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये हमने देखा। एक और बात अमोनियम आयन में है, याद रखनी है तुमको कि अमोनियम आयन कैसे बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। देखो अमोनियम आयन में ये पार्ट किसका है, अमोनिया का है। ये अमोनिया से आया है, और ये हाइड्रोजन जो H+ जो एसिड से आया है, करेक्ट है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि number of bonds in ammonium ion present, the covalent bonds present in the ammonium ion। तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, और एक क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एज वेल एज इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था और बाहर क्या लिखा था, Cl-, मतलब क्या इस पूरे अमोनियम आयन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और Cl- भी है। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, मतलब ये पूरा आयन और Cl- इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, करेक्ट है। सो आयोनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। सो दिस इज द एग्जांपल इन व्हिच all 3 types of bonds are present. So remember it, the question is asked. Now the next second type, second ion, that is hydronium ion. Hydronium ion, its formula is H3O+. Okay, so again, what is the meaning of the word hydro? Hydra means water. Okay, that means the ion which is formed from water, and at the last what is here, IUM. IUM किसके बीच में, किसके लास्ट में आता है, IUM जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे अमोनियम आयन हमने देखा। याद रखो केमिस्ट्री में जिसके बाद भी जिस वर्ड के बाद भी IUM आता है तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम आयन, SODIUM, IUM आयन। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कैसे बनेगा, सिंपल वाटर प्लस एसिड, HCl H2SO4 any acid. You know acid releases positive charge ion. Now you know in case of water, oxygen has 2 lone pair. So one lone pair is shared with the hydrogen H+ ion, and that's how H3O+ ion is formed. So this is called as a hydronium ion. Okay, इसको जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। You know oxygen has 6 valence electrons, so these are 6 valence electron, and this is a single electron of hydrogen. So these are the 2 covalent bond, plus H+ मैं निकाल रहा हूँ, H+ कहाँ से आया, ये एसिड से आया। सो क्या होगा कि ये लोन पेयर इसके तरफ जाएगी, शेयर होगी इसके साथ। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा हाइड्रोनियम आयन का, ऐसे। तो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन ने डोनेट किए, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पर, और बाहर क्या आएगा, Cl-। ओके, तो यहाँ पर भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और एक लोन पेयर जो है वो एज इट इज वैसे ही रहेगी, करेक्ट है। सो दिस इज द कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इफ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज आस्क्ड इन द एग्जाम, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। ओके, नाउ this hydronium ion again consists of covalent bond, coordinate bond, and ionic bond.
Okay, so these are only the two examples. There are only two examples in your textbook for your 10th grade syllabus, and I hope now this ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये डॉट स्ट्रक्चर पर ही आते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर अगर क्वेश्चन आया फाइनल एग्जाम में तो ज़्यादातर डॉट स्ट्रक्चर पर ही आता है. तो ये बहुत ही सिंपल मार्क्स है, ये मार्क्स तुम्हारे हाथों से नहीं जाने चाहिए. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. टॉपिक इज ऑल्सो वेरी सिंपल एंड आई डोंट नो व्हाई मेनी स्टूडेंट्स नॉट अंडरस्टूड. कितनी बार भी बताने के बाद उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में नहीं आता. पता नहीं इसमें क्या ज्यादा डिफिकल्ट है. एकदम सिंपल डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? कोवेलेंट बॉन्ड में हमने देखा, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा, H2 मॉलिक्यूल का. कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक एक एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक दूसरे के साथ. और यहां पर क्या होता है कि लोन पेयर शेयर होती है. लोन पेयर क्यों शेयर होती है? क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो बेचारा इलेक्ट्रॉन कहां से देगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम क्या करता है? शेयर करता है. एक ही एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करता है. और यहाँ पर क्या होता है? दोनों एटम में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. दैट इज ओनली द डिफरेंस. देयर इज नो फर्दर डिफरेंस. So how will you define now the coordinate bond? Coordinate bond is defined as the bond formed by complete donation of lone pair of electron from one atom to another atom. So this is very simple. I hope this point is clear. Now this chapter is completed. Some questions are remaining, some distinguishing points are remaining. जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है distinguish between पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये एक डिस्टिंग्विशिंग आता है. और सेकंड आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड. ओके, तो सारे पॉइंट्स मैंने अपने डिस्कशन में क्लियर कर लिए. टेक्स्ट बुक रेफर करो और टेक्स्ट बुक में देखो कि इन दोनों के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है. अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके या अपने पर्सनली मैसेज करके आप जान सकते. ओके, थैंक यू वेरी मच.